Discovering Tut, the saga continues. Summary of this chapter. Hello and welcome to English Academy. Today we will discuss the summary for students of class 11 English from the Hornbill book chapter 3. Now this chapter is about Tutankhamun, who was an Egyptian king and उसकी dead body mummy में preserve की गई थी. So एक British archaeologist था होवार्ड कार्टर, उसने 1922 में टुट की टूम को डिस्कवर किया और वही सारा प्रोसेस हमें इस चैप्टर में पढ़ाया गया है. Discovering Tut, the saga continues is a chapter that gives us an in-depth insight of Tutankhamun, the last ruler of the powerful Pharaoh dynasty in Egypt. He was a teenager when he died and his death was a mystery. Some speculated that he was murdered. So ये जो कहानी है ये हमें टुटनखामुन के बारे में बताती है जो कि फारो डायनेस्टी का लास्ट पावरफुल रूलर था और वो इजिप्ट से था. जब वो एक टीनेजर ही था तब मिस्टीरियस सर्कमस्टांसेस में उसकी मौत हो गई और कई लोग कहते हैं कि उसका मर्डर हुआ था. He ruled in Egypt and its empire for centuries. In 1922, his tomb was discovered by Howard Carter, a British archaeologist. After 80 years, he was taken from his resting place for CT scan, which offers to solve the mystery of his life and death by creating a forensic reconstruction. Now, Howard Carter ने टुटनखामुन की बॉडी को 80 इयर्स के बाद उसकी टूम में से क्यों निकाला था, यह जानने के लिए उसकी डेथ के पीछे क्या राज है, उस राज को सॉल्व करने के लिए. Tut's father or grandfather, Amenhotep III, was a very powerful pharaoh who ruled over a period of 40 years. His son, Amenhotep IV, thrived him and began the strangest period in the history of Egypt. अब ये जो टुटनखामुन है उसके ग्रैंडफादर का नाम था एमेनहोटेप थर्ड. वो बहुत ही पावरफुल इजिप्शियन रूलर थे और उन्हें 40 साल के लिए रूल किया. उनका बेटा जो था यानी कि टुटनखामुन का फादर, वो जब रूल पे आया तो उसने इजिप्ट की हिस्ट्री का एक बहुत ही अजीब पीरियड शुरू किया. He promoted the worship of Aten, the sun disk. He changed his name to Etenaten, meaning servant of the Atens. He also moved the religious capital from Thebes to the new city of Akhenaten called Amarna. तो उसने एमेनहोटेप फोर्थ ने ये सब चेंजेस किए. उसने एटन यानी कि सन डिस्क की वर्शिप को प्रमोट किया. उसने अपना नाम अखेनाटेन रख लिया और उसने रिलीजियस कैपिटल को थीब से शिफ्ट करके अखेनाटेन पर कर दिया. Further, he attacked Amun, a god, smashed his images and closed his temples. Another mysterious ruler succeeded him who died soon. अब एमेनहोटेप फोर्थ ने और क्या किया, उसने एक भगवान जिसका नाम था अमुन उसको अटैक किया, उसके इमेजेस को तोड़ा फोड़ा और उसके मंदिरों को बंद करवा दिया. उसके बाद एक और रूलर आया इजिप्ट के गद्दी पर थ्रोन पर, लेकिन वो भी बहुत जल्दी मर गया. उसके बाद नेक्स्ट था टुटनखामुन यानी कि टुट. Sat on the throne and ruled for 9 years. He worshipped god Amun in the old ways. However, he died mysteriously. अब टुट है जो वो 9 साल तक राज करता रहा. वो गॉड अमुन की वर्शिप करता था पुराने ट्रेडिशनल तरीकों से, लेकिन वो भी मिस्टीरियसली मर गया. When Tut's mummified body was discovered, he was laid with lots of gold, wealth and everyday items like a bronze razor, games, clothes, cases of food and wine. Carter discovered him after searching for many years. टुट की मम्मी को जब डिस्कवर किया गया तो मम्मी के साथ, डेड बॉडी के साथ बहुत सारी चीजें थी जैसे कि गोल्ड, वेल्थ, हर रोजमर्रा की यूज की चीजें. और कार्टर ने बहुत सर्च करने के बाद उसकी मम्मी को डिस्कवर किया. आफ्टर रिसर्चिंग ऑन द ट्रेजर्स ही डिसाइडेड टू इन्वेस्टिगेट हिज 3 nested coffins. Some parts of Tut's treasures in the tomb were already looted. अब पहले तो हावर्ड कार्टर ने उसके ट्रेजर्स की बहुत रिसर्च की और फिर 3 नेस्टेड कॉफिन्स को इन्वेस्टिगेट किया. नेस्टेड मीन्स एक के अंदर एक 3 कॉफिन्स थे और उनके अंदर फाइनली उसकी बॉडी थी. तो उसने ये देखा कि टुट के जो ट्रेजर्स थे उनका कुछ हिस्सा तो पहले ही लोग लूट चुके हैं. His tomb was rock cut 26 feet underground, which had wall paintings. On the outer coffin, Tut's face was gilded. In the first coffin, he found the garlands of olives, lotus petals, and cornflowers. It showed that he was buried in the months of March or April. The third and final coffin put Carter into trouble. So, जैसे कि हमने पढ़ा कि कॉफिन्स नेस्टेड थे, एक के अंदर एक कॉफिन था, तो जो सबसे बाहर वाला कॉफिन था वो रॉक कट था, रॉक का बना हुआ था, पत्थर का.
और वो 26 फीट धरती के अंदर गाड़ा हुआ था और उसके ऊपर पेंटिंग्स थी और उसके ऊपर टुट के जो चेहरा था वो गिल्डेड था यानी कि गोल्ड से कवर्ड था। उसके बाद जो अंदर पहला कॉफिन था उसमें ऑलिव्स, लोटस पेटल्स और कॉर्नफ्लावर्स के मालाएं थी, जिससे ये पता लगता है कि टुट को जो बरी किया गया था, दफनाया गया था, वो मार्च या अप्रैल के महीने में था, क्योंकि तभी ये वाले जो फ्लावर्स हैं इनके गार्लेंड्स मिलते हैं। जो तीसरा फाइनल कॉफिन था जिसमें फाइनली टुट की बॉडी थी, जब उसे वो निकाल रहे थे तो कार्टर को कुछ मुश्किलों का सामना करना पड़ा। The resins used to cement Tut to the bottom of the solid gold coffin was hardened enough, making it impossible to move. He put the coffin in the sun for several hours in hope of the resin to loosen up, but it didn't work. Finally, he removed the resins with the help of chisel and hammer. अब उसने देखा कि जो फाइनल कॉफिन है जिसमें टुट की बॉडी को रखा गया है, उसमें क्या है, उसमें जो रेजिन्स यानी कि जो गम यूज की गई है टुट की बॉडी को चिपकाने के लिए, उसके वो बिल्कुल सॉलिड हो गई है और टुट की बॉडी उस गोल्ड के कॉफिन के साथ बिल्कुल चिपक गई है और सख्त बन गई है और उसे वो बॉडी बाहर निकालनी थी। तो पहले तो उसने उस कॉफिन को काफी घंटों के लिए धूप में रखा कि शायद वो गम लूज हो जाएगी और वो बॉडी को निकाल पाएगा, लेकिन नहीं। फाइनली उसे एक हथौड़ा यूज करना पड़ा और उसके साथ उसकी बॉडी को कॉफिन से अलग करना पड़ा। Carter felt he didn't have any other choice as to if he hadn't cut the mummy from limb to limb, thieves would have looted the gold. His men first removed his head, then they cut off every joint. After removing the body parts, they placed it on the layer of sand in a wooden box and put it at the original place. कार्टर के पास कोई और चॉइस नहीं थी और उसे मम्मी को पूरा एंड टू एंड बाहर निकालना था, नहीं तो क्या होता, चोर उचक्के सारा जो सोना है इस मम्मी के ऊपर लगा हुआ उसे लूट कर ले जाते। तो उन्होंने सारे बॉडी पार्ट्स को अलग अलग करके निकाला और उन्हें मिट्टी की एक लेयर पर एक लकड़ी के डब्बे में रखा और फिर उन पार्ट्स को वापस उनकी ओरिजिनल जगह पर लगा दिया पूरी बॉडी बनाने के लिए। In 1968, the mummy was x-rayed by an anatomy professor, revealed facts, his breastbone and front ribs were missing. Later on January 5, 2009, Tut was taken for CT scan. CT is computed tomography, which takes hundreds of x-rays and creates a three-dimensional image. The night of the scan, the workman carried his body from the tomb in a box. तो देखिए अब टुट की मौत का राज जानने के लिए कितना कुछ किया जा रहा है। 1968 में उस डेड बॉडी का एक्सरे किया गया एंड ये पता लगा कि उसकी अंदर की कुछ बोन्स और रिब्स मिसिंग हैं। फिर 5 जनवरी को उसकी बॉडी को सीटी स्कैन के लिए लेके जाया गया और उस रात को सारे जो वर्कर्स हैं वो उसकी बॉडी को टूम से एक डब्बे में डालकर लेकर बाहर निकले। They climbed the ramp and stairs and lifted it on a hydraulic trailer that held the scanner. तो उसकी बॉडी को एक हाइड्रोलिक मशीन के ऊपर रखकर नीचे टूम से बाहर निकाला गया। द स्कैनर स्टॉप वर्किंग विच पॉज द प्रोसीजर। अब जो सिटी स्कैनर था वो काम करना बंद कर देता है और इससे उनका काम डिले हो गया। आफ्टर यूजिंग अ पेयर ऑफ स्पेयर फैंस द स्कैन वॉज फाइनली डन। तो उन्होंने कुछ स्पेयर फैंस यानी कि एक्स्ट्रा फैंस यूज किए ताकि स्कैनर चल पाए। After 3 hours, his body was taken back to his tomb, where his body is resting in peace. Finally, 3 घंटे लगे सीटी स्कैन करने में और फिर उसकी बॉडी को वापस टूम में रख दिया गया। So with this we come to an end of this summary video. If you want a line by line explanation of this lesson, you can check out the explanation videos का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ ही साथ क्लास 11 के सभी लेसन्स के नोट्स, उनके कैरेक्टर स्केचेस, एमसीक्यूज, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आंसर्स एंड राइटिंग स्किल्स टॉपिक्स, ये सब हमने कवर किए हैं। इनके नोट्स के लिंक्स भी आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। इफ यू फाउंड द वीडियो हेल्पफुल, प्लीज हिट द लाइक बटन, शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फॉर मोर वीडियोज सब्सक्राइब टू द चैनल।